ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جب میں مجبور ہو کر مرد بن کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی۔ میرے مالک بہت اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا رشتہ لے جائیں، اتنے جوان، خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے میری ہی تصویر۔ میرا نام فروا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اس لیے میرے لیے پیسے یا جاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے والد کے 2 بھائی اور ایک بہن ہیں۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے۔ ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے تھے اور میرے چاچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض تھے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا اچانک سے ہم پر مہرباں ہو گئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سانپ کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا وہ کزن برا لگتا تھا جس کی پہلی شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی جو کسی غیر برادری سے تھی۔ اسی لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چاچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر کے رکھا تھا، اس لیے ابا نے کہا کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر لوگ تھے اور امیروں کی شادیاں اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے دیر ہو گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس رکی اور کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ قید خانہ تھا۔ یہاں پر بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹھوں پر بیچی جاتی تھیں۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے بہت غصہ آیا، وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا دعا کرو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ایک اس لڑکے کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھیں کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پہ بہت ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھو رہا تھا جیسے یہاں سے اسے نکلنے کی جگہ مل جائے۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ان ظالموں کے ہاتھ یہاں کیسے آیا؟ وہ مزید رونے لگا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کی ایک جیل میں تھے اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اسی لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا میرے نزدیک آ کر کہا، لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، وہ شخص جو نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے تھے۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ یہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچوں کو یہاں پہنچا دیا گیا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمیں تھوڑا کچھ کھانے کو دیتے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیرے قید خانے میں
सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कब सुबह होती होगी और कब शाम। तभी मैंने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा था, जिसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया और वो वहीं अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर मर गई। वहां मौजूद लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा था। अब मुझे इस दिन से डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी किसी घिनौने काम में मरवा देते। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं वही होता है। अब ये लोग वहाँ मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि उन्हें लोगों से नशा फरोख्त करवा कर अपना काम निकाल सकें। एक दिन मुझे भी एक और कमरे में ले जाया गया। यहाँ मौजूद एक लड़के ने एक इंजेक्शन मुझे दिया। अब रोज़ यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता न चला। अब किसी को मुझे कहने की ज़रूरत न पड़ती। मैं खुद ब खुद नशे की तलब में इस लड़के के पास जाने लगी। वो लड़का मुझसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता। मेरा नाम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और बताते हुए रोती थी कि मैं बदनसीब हूँ जिसके वालिदैन जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने क्या क्या कुछ कहा होगा और मेरी जुदाई में मेरे माँ बाप इस दुनिया में जीते जी मर गए होंगे। इस लड़के ने, जिसका नाम दाइम था, उसने एक दिन मुझसे वादा किया कि मुझे यहाँ से निकालेगा, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है और मुझे लगता है जिस पर गुजर रही हो उससे पता होता है वक्त कैसे गुजरा। एक दिन जो हम लोगों की निगरानी पे शख्स खड़ा था वो फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। उसे कुछ देर पहले किसी ने शराब पीते देखा था। हम सब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकलकर भागना शुरू कर दिया। तब तक इस गैंग के बाकी लोगों को पता चल गया। इन लोगों ने फायरिंग कर दी। यकीन करें, उस दिन पता चला आज़ादी क्या होती है, जान कितनी प्यारी होती है। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गईं, कुछ इस भगदड़ में ज़ख्मी हो गए। मैं इतने ज़ोर से ज़मीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था, लेकिन इस वक्त इस तकलीफ़ से ज़्यादा यही सोच थी कि यहाँ से भागना है, निकलना है, नहीं तो सारी ज़िंदगी यही ज़िंदगी होगी। ये एक सुनसान रास्ता था। सड़क के साथ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती वहाँ से निकली। रात काफ़ी हो चुकी थी। जब पक्की सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई लिफ्ट देने को रुकने का रिस्क नहीं लेने वाला था। मैंने पैदल ही वहाँ से चलना शुरू किया, लेकिन एक तो 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से सेहत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था और मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस ने होश में आते ही मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं डरती थी कि मैं जिस मुसीबत से निकली हूँ फिर से उसमें न फंस जाऊँ। वो लोग बहुत ख़तरनाक थे। मैंने मुकर जाना बेहतर समझा, लेकिन वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा कि इसने मुझे वहाँ से भागते देखा। मुझसे घर का एड्रेस लिया और कुछ देर में मेरी बदनसीब माँ वहाँ थी। मैं कितनी देर अपनी जगह से हिल नहीं सकी। पता नहीं कब मेरी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब पता चला कि मेरी माँ उस दिन 6 माह बाद बोली थी। मेरे अगवा के बाद मेरे वालिद को लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। मेरा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी माँ बेटी और शौहर के गम में ज़हनी तौर पर बीमार हो गई। लोगों ने देखा उसने बोलना चलना छोड़ दिया और आज मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो कलेजा फट गया। अस्पताल में आते जाते लोगों ने देखा मेरी माँ चीख चीख कर कहती रही, इसकी तबाही हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं माँ के साथ घर आई तो पता चला मुआशरा घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन क्यों भागी, कैसे नहीं लौटी, कोई नहीं देखता। हर शख्स ने अपनी ऐनक लगा रखी है और सब अपनी ही नज़र और सोच के मुताबिक दूसरों पर फतवे लगाते हैं। हम बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि हमें दूसरों के दोज़ख में जाने की फ़िक्र रहती है और ये भूल जाते हैं। ऐसे में हम अपनी जन्नत भी गंवा रहे होते हैं। सारा ख़ानदान घर पर जमा था। जितने मुँह उतनी बातें थी। कोई कहता वो लड़का कहाँ है जिसकी वजह से ये घर से भागी थी, इसका बाप इसकी वजह से अपनी जान से गया, और कोई कहता वो लड़का बुज़दिल है जो इसे इस वक्त अकेला छोड़ गया, और कोई कह रहा था कि अब गई ही चली थी तो वापस क्यों आई।
इन लोगों ने रखा नहीं तुम्हें? हम वजाहत भी एक हद तक देते हैं। जब कोई सच झूठ की परवाह किए बगैर सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा रहा हो, कुछ सुनने को तैयार ना हो, तो आप यही सोचते हैं कि आपको अपने किरदार के सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त मैं भी जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना तक हमारे मुआशरे में औरत के लिए सज़ा बन जाता है। इसका अपना ही ख़ानदान उसे कबूल नहीं करता। मैं तो 6 माह बाद घर आई थी। मुझ पर फतवे लग रहे थे, इल्ज़ाम लग रहे थे। ख़ानदान वालों ने माँ से कहा इस नापाक को घर ही रखा तो ख़ानदान से हर नाता हर राब्ता तोड़ना होगा, और माँ ही तो वाहिद सहारा होती है औलाद की। जब सारा ज़माना भी दुत्कार दे तो माँ ही सीने से लगाती है। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और हम माँ बेटी ने शरीफों का ख़ानदान छोड़ दिया और यहाँ शहर में आ गईं। यहाँ मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे का वक्त था जब हम लोग उसके घर पहुँचे। हमें देखकर और इस वक्त अचानक देख के पता नहीं क्यों वो घबरा गई। उसने हमें कमरे में बिठाया, हाल अहवाल के बाद खाना खिलाया। तब तक उसके हैरान होने की वजह मुझे समझ आ गई थी। उसका पागल बेटा वहाँ आ गया और बार बार बच्चों की तरह माँ से ज़िद करने लगा। मेरी माँ ने कहा तुम चली जाओ, जो कहता है इसकी मान लो, हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। माँ की सहेली ने बताया कि ये लड़का इसके शौहर की पहली बीवी से है। इसकी औलाद नहीं तो इसने इसे ही अपना बेटा बनाकर पाला। अम्मा की सहेली ने बताया कि उसका बेटा एक बहुत काबिल तालिब इल्म था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक दफ़ा मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने इसके सर पर कोई चीज़ मारी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और पूरा महीना अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टर नाउम्मीद थे। और वही हुआ, इसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। इसके लिए 25 साल की उम्र में भी इसका बचपन ही है। माँ की सहेली का बेटा, जिसका नाम रामिश था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता था। हम माँ बेटी उनके घर रहने लगे। रामिश सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या फिर अपनी माँ से ज़िद करके अपनी बात मनवाता। मैं अब उसके साथ बातें करती तो पहले की तरह मुझे ये न कहता कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता। मेरी माँ ने मना किया है। अब वो मेरी बात भी मानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता उसे फरवा के हाथ का खाना खाना है। मैं भी उसका ख्याल रखती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। इन लोगों का एहसान था, सर छुपाने को छत दी थी, यही बहुत था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। मैं सारा दिन घर के काम करती। रामिश के वालिद कुछ साल पहले फोत हो गए थे। घर में सिर्फ वो था और उसकी माँ। कुछ अरसे बाद अम्मा की सहेली ने अजीबी फरमाइश कर दी कि वो मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहती हैं। सब जानते थे बज़ाहिर रामिश ठीक था, लेकिन वो एक बच्चों जैसा जहन रखने वाला इंसान था जिसे अपना फ़ायदे नुकसान का कुछ पता नहीं था। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे घर रहने की इतनी बड़ी कीमत तो ना मांगो, लेकिन अम्मा की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो मैं उनके बेटे से शादी करूं या फिर हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। लोग कैसे निकाब पहन कर फिरते हैं इस दिन पता चला था। हम लोग उन्हें क्या समझते थे और वो क्या निकली थी। अम्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम इस पागल से शादी नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्यों रामिश के लिए मेरे दिल भी नरम हो गया था। वो चाहे बच्चों जैसी जहनियत रखता था, लेकिन मुझे वो अच्छा लगने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी कुछ इतनी ख़ास तो हूँ नहीं जो कोई शहज़ादा सलीम आएगा मेरे लिए, और ख़ानदान से हम निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरा माजी जान लेगा तो मुझे कभी इज्जत नहीं देगा, इसलिए यही बेहतर है कि इसी घर की छत तले रहें। अम्मा रोती रही कि एक बेटी थी, कैसा नसीब ले आई, बदकिस्मत ही रही। इस दिन मैं भी देर तक रोती रही। जब मुझे एहसास हुआ कोई कमरे के दरवाजे पे है, मैंने दरवाज़ा खोला तो रामिश था। हाथ में एक गुड़िया थी। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो कहने लगा इस वक्त मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। इस दिन मैं बहुत हंसी थी। अजीब पागल था। उसने मुझे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी जिसके सर पे काले धागे से बहुत सारे बाल बनाए गए थे। कहने लगा ये तुम हो, देखो इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं। मैंने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। मेरी ज़िंदगी इस रुई की गुड़िया जैसी ही तो हो गई थी। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह रामिश से कर दिया गया। मेरी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी।
वो ये सब देख नहीं सकती थी, लेकिन हमारी मजबूरी ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर किया। बज़ाहिर रामिश खुश शक्ल लड़का था। जब तक बोलता या बातें न करता, कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद रामिश की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। अब मुझे वो ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। मेरी सास अब बहुत खुश थी। जो चाहती थी वो हो गया था। एक दिन एक फकीरनी आई। उसने कहा, मुझे खाना खिला, मैं तुझे दुआ दूंगी, हर मुराद पूरी होगी तेरी। मेरी मुराद भला इसके सिवा क्या होती कि मेरा शौहर ठीक हो जाए। इस फकीरनी ने खाना खाया और जाते हुए मुझे दुआ दे गई, तेरा शौहर तुझे ज़िंदगी भर सच्ची मोहब्बत दे। मैं उसकी दुआ पर हैरान थी। मेरे शौहर को तो पता ही नहीं था कि बीवी क्या होती है और मोहब्बत क्या। कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती है। मैंने भी बदलती देखी। रामिश दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। अब उसका इलाज भी दोबारा शुरू करवाया था। इस बार डॉक्टर भी पुरुमीद थे। मेरा सारा दिन भी रामिश की देखभाल और रात अल्लाह से रो रो कर दुआओं में गुजर जाती थी। फिर अल्लाह ने मेरी सुन ली और रामिश पहले से बहुत बेहतर हो गया। लेकिन तब पता नहीं मेरी सास को क्या लगा कि रामिश अगर ठीक हो गया तो कहीं सब कुछ मेरे नाम न कर दे। वो अब रामिश को मेरे पास बैठने तक न देती। इन्हीं दिनों मेरी वालदा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे अपनी बदकिस्मती का यकीन होने लगा। मेरी सास ने हर मदद से इनकार कर दिया। मैं सारा महीना सरकारी अस्पताल में माँ का इलाज करवाती रही। वहाँ से भी आधी दवाई मिलती और आधी कहते बाहर मेडिकल स्टोर से ले लो। मैं वो बदकिस्मत बेटी थी जो अपने वालदैन के किसी काम ना आ सके, बल्कि उनकी तबाही का सबब बन गई। मेरा बाप मेरे गम में चल बसा और माँ मौत के मुंह में थी। सर्दियों की रातों में मैं और मेरी माँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की इंसानियत देखते रहे। और फिर एक दिन जब मेरी आँख खुली, इस लकड़ी के बेंच पर लेट लेट के मेरा जिस्म अकड़ चुका था। जब माँ को आवाज़ दी तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ मुझे सोता छोड़ के न जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। पता नहीं जिसने मदद की कौन घर छोड़ के गया, कुछ पता नहीं। मोहल्ले के किसी शख्स ने कफन दफन का इंतज़ाम करवाया। मैं दुनिया में तन्हा रह गई थी। एक एक करके मेरे रिश्ते मुझे छोड़ गए थे। सारा दिन रोते और रात सोचों में गुजर जाती थी। जब हम सोच रहे होते हैं हम पर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही तो किसके लिए जीना। कुछ लोग ज़िंदगी से मायूस होकर इसके ख़त्म होने के दिन गिनते हैं और कुछ लोग कोई वजह ढूंढ लेते हैं। मेरे पास वजह भी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सास रामिश से कह के मुझे बातें सुनवाती। वो पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन अपनी माँ के हाथों खिलौना बन चुका था। जैसा कहती वही उसके लिए हरफ़े आखिर होता। हम मियाँ बीवी अजीब रिश्ते में जुड़े थे, साथ थे, लेकिन साथ रहते एक दूसरे के साथ नहीं थे। एक बीवी को जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, जो मान और भरोसा होता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने मुझे ही चुना आजमाने के लिए। मैं माँ बनने वाली थी और ये खबर यकीनन किसी ऐसी लड़की के लिए खुशी की होती होगी जिसका दुनिया में कोई खून का रिश्ता बाकी ना बचा हो। उससे ऐसी खबर पे खुश होना चाहिए कि औलाद के आने के बाद एक मजबूत रिश्ता होगा जो सिर्फ उसका होगा। लेकिन मैं खुश कैसे होती? मेरा मुकाम एक बीवी की हैसियत में क्या था? इस ख़ानदान में क्या था? ज़माना मुझे क्या समझता था? इन बातों के बाद मैं नहीं चाहती थी कोई और फरवा इस दुनिया में आए। मैंने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उसने कहा वो मेरी मदद करेगी। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती थी जो मेरी तरह ज़िंदगी में मजबूर और बेबसी की ज़िंदगी गुजारे। फिर रामिश कैसा बाप होता जो अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका था, जिसका जहन अब भी सिर्फ वही कर रहा था जो इसकी माँ कहती थी। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ न दिया। इस नर्स ने कहा कि इस वक्त अगर कुछ किया तो तुम्हारी जान को ख़तरा है। मायूसी से घर लौट आई। वो 9 माह मेरे लिए 9 साल जैसे थे। शदीद ज़हनी अजियत और तकलीफ़। मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मेरे असाब मेरा साथ छोड़ रहे थे। जब एक रात मेरी ज़िंदगी में 2 और मासूम जुड़ गए थे। मैंने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देखकर मुझे अजीब सी खुशी थी। मैं जो सोचती थी मुझे औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, मुझे ज़रूरत नहीं किसी रिश्ते की,
एक लम्हे में सब कुछ बदला था। मैं इन मासूम फरिश्तों को देखते ही ममता के एहसास ने मुझसे सारे गिले छीनकर शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया कि तुम तो इन्हें मारने वाली थी। मैं रोज़ अल्लाह से माफ़ी मांगती और अपने बच्चों की ज़िंदगी की दुआएं करती। रामेश और मेरी सास का रवैया भी अब कुछ बेहतर था। मुझे ना भी पूछते, लेकिन बच्चों से उन्हें लगाव था और मेरे जैसे बदकिस्मत के लिए यही काफ़ी था। बच्चों के छोटे छोटे काम करते वक्त अच्छा गुजरने लगा और वो दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने पहली दफ़ा मुझे माँ कह के पुकारा। ये बात वो लोग समझेंगे जिनका कोई नहीं होता, लेकिन फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। एक दिन मेरी सास और रामेश गांव किसी फोतकी पर गए हुए थे। वापसी पर तेज़ रफ्तार में आते ट्रक से उस बस का एक्सीडेंट हो गया और ये वो दिन था मैं जो भूलती जा रही थी। मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे कुदरत ने याद दिलाया कि तुम अब भी बदकिस्मत ही रहोगी। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा हो गई। एक बार फिर से मेरी सास और रामेश कैसा भी था, लेकिन ये तो था कि हम अकेले नहीं थे इस घर में। अब सारी रात नींद ना आती, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों की फ़िक्र, बच्चों के पेट की फ़िक्र। अब बच्चे दूध के लिए रोते रहते, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। ज़िंदगी फाकों तक आ गई। माँ खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैंने मोहल्ले में घरों में पता किया और किसी न किसी का कोई काम होता तो वो मैं कर देती, जिससे जो मिलता अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन यहाँ भी वही मर्दों का मुआशरा, जिसमें औरत अगर अकेली है तो मुफ्त का माल समझ लिया जाता है। मुझे अब लोगों की नज़रें और नीयतें परेशान करने लगीं। एक रात बहुत सोचा तो याद आया घर रामेश के नाम ही था। इसी वक्त उठी और कागजात ढूंढे। अगले दिन ही मोहल्ले की एक औरत जो उस्तानी थी, उसे कह के बैंक साथ ले गई। घर को बैंक में गिरवी रखवा कर गाड़ी निकलवा लेने का सोचा, लेकिन एक वसीला बन गया। एक शख्स को ड्राइवर की ज़रूरत थी। मैंने मर्दाना हुलिया बना लिया और ये जॉब शुरू कर दी। कुछ मैंने खुद को मजबूत बना लिया अपने बच्चों की खातिर। मैंने गाड़ी चलाना इन्हीं दिनों सीखी थी जब इस गैंग में 6 माह कैद रही थी। वो लोग हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर भागना हो तो गाड़ी चलानी आती हो। इस तरह बुरे वक्तों का एक अच्छा तजुर्बा मेरे काम आ गया। अब मैं गाड़ी चलाती, कोई ना कोई सवारी मिल जाती, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा के जो मिलता उससे अच्छी गुजर बसर हो रही थी। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। ज़िंदगी कुछ ट्रैक पर आ गई। मेरे साहब को गाड़ी की ज़रूरत थी। उसे छोड़ने के बाद मैं बाकी सवारियां भी बिठा सकती थी। वो एक खूबसूरत और नरम दिल इंसान था और अब रोज़ ही मेरे साथ सफ़र करता और मैं बच्चों की छुट्टी के वक्त तक घर भी पहुंच जाती थी। वो शख्स अब मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप अपने गम भी शेयर करने लगते हैं। अब इस सफ़र में हम लोगों की अच्छी बातचीत होने लगी। सफ़र भी अच्छा गुजर जाता और मुझे भी एक जाना पहचाना सा शख्स मिल गया था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि एक लड़की देखी थी, उससे मोहब्बत हो गई थी मुझे। इसके बाद ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ दिखाए कि वक्त ना मिला कि उसे ढूंढ सकता। अपने झमेलों में वो लड़की कहीं खो गई। वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं किस हाल में होगी। उसने कहा वो अगले दिन उसकी तस्वीर मुझे ज़रूर दिखाएगा। मुझे अगले दिन का इंतज़ार था। मुझे इस लड़की की किस्मत पर रश्क आ रहा था जिससे कोई 7 साल से मोहब्बत करता था और उसकी खातिर शादी भी नहीं की थी। और ऐसी मोहब्बत के इस लड़की का कुछ अता पता भी नहीं और इस लड़की को मालूम भी नहीं था कैसी मोहब्बत थी, हर गर्ज से पाक। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं जब उसे लेने गई तो वो उसी जगह खड़ा था। मुझे देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाकर मैंने उससे कहा, मुझे दिखाओ कौन लड़की है वो। उसने जेब से तस्वीर निकाली और मुझे दिखाई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो शख्स मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हो गई थी। पता नहीं कैसे उसने वो तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। उसने कहा ध्यान से चलाओ, लेकिन मैं उससे क्या बताती कि मैं किस ध्यान में हूँ। जो अब बता रहा था कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से वादा किया कि वो इस दलदल से निकलेगा और इस मासूम लड़की को भी निकालेगा। मैं वहाँ मौजूद लोगों को नशे का आदी बना देता था,
لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا تھا کہ اسے نشہ دے دیا ہے، لیکن ایک دو بار کے بعد میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار آفیسر کو دے کر وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے اور والدہ اور اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا تھا لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے طعنے دیے تھے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پر لے آئی تھی؟ میں نے کہا، دائم مجھے نہیں پتا تھا میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آتی رہیں۔ میں اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران رہ گیا اور بولا کہ تم فروا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا، میرے بچوں کو باپ بن کے پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ دائم ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے۔ دائم بھی ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسے سنتا جیسے دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے۔ دائم جب ڈانٹتا تو کہتے، پاپا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں مدد دی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔